So, what are you thankful for? I'm thankful for my family. I am thankful for my neighbor. I'm thankful for my dog. I'm thankful for the food I have to eat. I'm thankful for my heart. I am thankful for my grandma and grandpa. I'm thankful for my teacher. I am thankful for my house. We're thankful for the earth. So on the days when it's feeling tough and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Thankful. Yeah, you got a lot to be thankful for. Grateful. We've got a lot to be thankful for. Appreciate. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Alright, we've got a lot to be thankful for. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Sunita afternoon. ji should get the first prize. Every day she's the first one to greet back. Nahi, Sunita ji, so nice with always. Good afternoon. Good afternoon. Good So nice to afternoon. see Good you, afternoon. Sonia. Same So here. you started pranic healing from, you're starting from tomorrow? Yeah, sure. There is going to session. So how was today's morning for everybody? आज की सुबह की प्रैक्टिस, आज तो ना कुछ लिखना था besides the regular, नया कुछ लिखने का भी नहीं था. So I hope everybody did it. Yes, we did. Yes. I did it even with greater thing ना, हमेशा करते हैं जैसे डेली थोड़ा करते हैं, but जितना deep आज घुस के किए, really deep into it, really enjoyed, and actually really enjoyed myself. Did anybody find something I have different music to on thank about today? कुछ और different मिला? रोज के हम लोग thankfulness जो होते हैं, उससे कोई different चीज मिली आज जिसके लिए आप thank you कर पाए in your morning routine? मेरे को I was grateful to my scrubber, to my pumice stone, you know, all these things which normally you don't think अरे shower साबुन कर देते हैं, but today when you were going deep, मेरा एक है ना जो द टैप का सिस्टम जो होता है उसके पीछे ग्लास लगा हुआ है, वो क्रैक हो गया था. क्रैक मतलब इट बिकेम लाइक यू नो शैटर्ड ऑल ओवर, बट द पीसेस डिडंट फॉल ऑफ, एंड वो जब तक चल रहा है मैं भी चलने दे रही हूँ. सो आई वाज सो ग्रेटफुल कि तुम चिपके पड़े हो अभी तक. बहुत ज्यादा. Yesterday शालिनी तुमने देखा था सारिका जी did the thing, peak state. Sarika, Shalini. Sarika ji had led the peak state yesterday. Yeah, I had joined on the Facebook. I heard her. So she did it so well. I know. It was actually nice. I think somebody else should take the initiative today. Yes, आज कोई और lead करे. Music हम लोग बजा देंगे. You just have to run. Inspire everybody. आज कौन lead कर रहा है? Who's coming forward? मेरा पिक्चर थोड़ा डार्क आ रहा है क्या? हाँ, तेरा पिक्चर पूरा ही डार्क, जैसे तू है ना, मतलब सिनेमा हॉल में बैठी है उस टाइप से लोग.
Okay, just give me a minute. So anyone, any sharings, कुछ भी you'd like to talk about? Affirmations, sharings. Anyone about the exercises you are doing? Assignments. They are a must, please. अच्छा तो सबको गुरुजी का ज्ञान भी सुन के आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. Sarita, I just had one question. Yes. This chapter on magical morning. Okay. So Yeah. it's like only that morning routine, what she's talking about. See, the rest of the day we are doing gratitude at various times. So this what she's talking is just that morning when you get up, or I mean, it's like continue the whole day. No, she is talking कि morning आप अच्छा कर लोगे, Morning. तो day Okay. अपने आप ही अच्छा है. You are अच्छा setting हो the जाए. tone for the day. Yeah. For the day. Okay. Yeah, so she's Okay. talking of the power of that gratitude in the morning. Again, when but Right. she, like someone yesterday pointed out, na concentrated, पूरा focus उसी में होना पड़ेगा. Right. Correct. So any day that you want to be magical, you can do it. If you want every day to be magical, Every you can day do it. can do But it. daily life में देखिए अपने भूलते हैं, we cannot do with so much sincerity जो आज. Yeah. Exactly. Yeah. But there are people. Abhi I am seeing people. I'm in touch with one or two people who are doing that sincerely. Every day. Yes. So मतलब today's really. concentrated this which was there, so it really helps you, calm you down. Like today my cook didn't turn up, so I didn't get hassled about it. And just quick thinking as to what is to be done before I have to rush. So yeah, it helps. Yes, that is the difference because daily life में तो देखिए इसी को magic बोलेंगे ना. Wow, the way I reacted, that was magical. Right. Good evening, ma'am. Magic evening. Thank you. Right? Magical evening. So anyone wants to lead the peak state? Anyone volunteers? नहीं तो शालिनी और हम तो है ही. But anyone else wants to do the run? Do we take the liberty to just pick a person today? Are you all giving us everyone background में comfort होना पड़ेगा ना? हाँ, वो बोल दे कि उनका comfort नहीं है अगर हमने pick किया तो. Let's pinpoint you. शुरू करें किसी एक जन को पकड़ना. Meena ji, can we take you today to lead the peak state? Can't hear you. Okay, I will try. Wow. Okay, so I'm playing the music and we are going to all run with you. Yes, let's all stand. Meena ji is going to lead us. Come on! Run! Yes, you can do it! You can do it! Come on! Run towards your goal! Yes! Run! Come on! Yes! You're doing it! You can do it! Run! Yes! I'm the winner! I did it and you did it, Meena ji. Yes, I did it. So the other foot. Come on, guys. You can do it. Come on, run. You have to reach your goal. Run. Yes. Come on, faster. Run. Yes. You can do it. Yes. Run faster. Yes. You did it. Yes, we did it. We all did it. Yes. You all did it. Yes, Meena, you did it. Clap. I'm the winner. Clap. Superb, Meena ji, superb.
Thank you, ma'am. 2 दिन में 2 तीर मान लिया आपने, yesterday reading and today this. Thank you so much. Sarika di for giving my hints. You did it. Thank you, Didi. Thank you, Didi. And ma'am, both of you, Thanks to Sarika actually, Sarika ji na yesterday. she did it, so what- Shalini ma'am picked me. Thank you, ma'am. The universe picked you. वो मुझे इशारा था कि आपको पिक करे. I didn't pick you. Thank you. I enjoyed it. So, Wow. thank you. Thank you, everyone. So let's gather and do a prayer. परमपिता परमेश्वर, हम सब में ये नई ऊर्जा भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नया जो खुद में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, उसके लिए शुक्रिया। कैसे मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। अचानक से आज खाना बनाने वाली नहीं आई, but I was fine. Thank you. That is a magic in my life, how my reactions have changed. Thank you, God. Thank you for these small changes. मेरे को पता है ये आगे जाके मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज एंड बहुत खुशियां लाने वाला है। मेरे सारे सपने जो मैं अब जानती हूँ मुझे क्या चाहिए, कभी सोचा ही नहीं था। My particular dreams, मेरे को पता है मेरे को बिल्कुल ये ऐसा चाहिए। थैंक यू मुझे वो देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर अ न्यू मी। मैं नई हो गई हूँ, फिर से जैसे कोई जीवन दान मिला है मुझे। इस राह पे लाने के लिए शुक्रिया, इस राह पे रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया। जस्ट फील दैट पीस, फील गॉड्स ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू यू फ्रॉम अबव। ऊपर से जैसे एक ना बहुत दिव्य रोशनी आपके अंदर आ रही है, आके अपने हार्ट पे आके वो रुक रही है, वहां से पूरे शरीर में फैल रही है। दैट वाइट लाइट पूरे शरीर को कवर कर रही है, भगवान की दिव्य रोशनी है ये। You are filled with that divine light. Thank you, thank you, thank you. सबके साथ शेयर कर लें ये रोशनी, ये प्यार जो आप महसूस कर रहे हैं, ये खुशी। Just bless all your family, all your friends, जिसको भी जरूरत है दुनिया में। आपको मैं आस, खुशी, भगवान पे विश्वास रखिए, सब होता है। Everything is possible. Thank you, thank you, thank you. Anita ji, you are ready for Yes. reading today? Yes, Thank I'm you ready. so much. Thank you. My pleasure, my pleasure. You can hear me? Yeah. I'll start reading. Yeah, just a moment. एक बार अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में when there was an introduction to the book we had read ना कि ये बुक 3 भागों में डिवाइड की हुई है and first 12 chapters were meant to be for our अभी तक जितनी हम आज जैसे ग्रुप में भी हमने डाला था ना कि अभी तक लाइफ में हमारे पास जितनी ब्लेसिंग्स रही हैं, have we not realized रोंडा, हमें हर एक चैप्टर में अभी तक हमारी जिंदगी में जितनी भी नियामतें हैं उनको याद करवा रही है एक एक करके। Have we realized this? Maybe it is in the kind of relationship we have और जितने पैसे आज तक हमें दिए गए हैं या फिर जो सेहत, जो हेल्थ हमने अभी तक एंजॉय किया है, जितनी एनर्जी के साथ हम जिए हैं, प्लस और फूड और डिफरेंट एरियाज में हमने जो जो मिला है, जहां जहां से मिला है, जिसकी जिसकी वजह से मिला है, उन्होंने हमसे सबको ग्रैटिट्यूड करवाया। सो टुडे इज आवर लास्ट चैप्टर इन दिस फ्रंट। आज हम
मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, जो आज तक की जिंदगी को हमको क्या हमें वो ऐसा क्या रोल प्ले करी कि हमारी जिंदगी बदल गई, आज हम उन सब लोगों को याद करेंगे। यस अनीता जी। Yeah. Day 12. Magical people who made a difference. So here we are seeing in this picture. पिक्चर में इन्होंने काफी 2-3-4 पिक्चर्स दिखाई हैं, और उनके ऊपर अब तो हमें पता है व्हाट इज मैजिक डस्ट। ये स्पार्कल, ये स्प्रिंकलिंग गोल्डन डस्ट जो है वो उनपे धूल छिड़क रहे हैं। वो एज दिस इज नथिंग बट हमारी जो ब्लेसिंग्स उनकी तरफ जाती है, हमारा जो ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ जाता है, और इस ग्रैटिट्यूड से बिकॉज वी ऑल आर वन, वो उनको छूकर उनको भी बहुत हैप्पीनेस देता है। So this is what we have to do to आज के चैप्टर के थ्रू, कि we need to spread those happiness, that blessings to people जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस मेक किया है। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. सो एल्बर्ट श्वाइट्जर क्या बोलते हैं, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा लो फेज आया रहा होगा, कभी ना कभी हमारी जिंदगी में डिप आया रहा होगा, जहां हमारी लौ बुझती जा रही थी, हमारा विगर, हमारा एनर्जी, हमारा जो अंदर से जीने की जो इच्छा है, शायद कभी ना कभी ऐसा हुआ था कि हम और स्ट्रगल नहीं ले पा रहे हैं और अब नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फेज लाइफ में आया होगा। और वहीं पे किसी ने आकर उस हमारी लाइफ में वो जो एंथुजियाज्म है, वो जो लाइफ जीने की हमारी शक्ति है, उन्होंने अपने किसी न किसी बात से, या अपने किसी न किसी इंस्टेंस या एग्जाम्पल से, या किसी भी तरह उन्होंने हमारी जिंदगी को वापस रोशनी की तरफ मोड़ दिया। हम शायद गड्ढे में जा रहे थे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर उस खाई से हमें खींचकर, उस दलदल से हमें बाहर निकालकर हमारी जिंदगी में बहुत रोशनी भर दी। तो ये आज हमारी ड्यूटी बनती है कि ईच वन ऑफ देम, जिन्होंने हमारे लिए इतना एक लाइफ चेंजिंग काम किया है, उनको हम ग्रैटिट्यूड दे, ताकि उनकी जिंदगी भी रोशनी से भर जाए। जितनी रोशनी उन्होंने हमारी जिंदगी में भरी, हम उतना भर भर के उन्हें ब्लेसिंग्स दें, उतना भर भर के उन्हें याद करें, ताकि उनकी जिंदगी भी रोशनी से भर जाए। अगर हिंदी में इसे पढ़े, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया था। कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। सो इट इज काइंड ऑफ अ मैंडेटरी। उन लोगों को याद रखना हमारे लिए जरूरी है जिन्होंने हमारे बुझते हुए दिए को, अपने दिए से, हम दिए कैसे कैंडल से कैंडल जलाते हैं ना, तो एक कैंडल से हम 100 जगह रोशनी कर सकते हैं। दैट इज हाउ दे वेर द स्पार्क ऑफ लाइट इन आवर लाइफ, सो वी शुड रिमेंबर देम। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on. And we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle,
aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. So here we are, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं each one of us in some or the other way have received help. किसी ना किसी से हमें वो support system मिला है जब हमको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी. भले ही वो एक हमारा घर का इंसान होगा, क्या हमारे परिचित में होगा, मेरे कोई फ्रेंड होगी, या आप कोई अननोन पर्सन कहीं से आउट ऑफ द ब्लू. कभी कभी नहीं होता है, कोई आकर आपको ऐसा सुझाव देके चला जाता है एंड दैट मेक्स योर प्रॉब्लम एट जो आपके हाथ में है वो चुटकियों में ऐसे रिजॉल्व हो जाता है. हैवंट वी? और क्या फिर कभी हम टीवी देख रहे होते हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, अचानक से वो सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है. अचानक से कुछ ऐसी बात हो जाती है, किसी तीसरे की बात सुन रहे होंगे तो अचानक से आपको क्या पता कानों में ऐसी बात पड़ जाती है जिससे आपका जीवन चेंज हो जाता है. वो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट देता है, आपको मे बी उस वक्त एनकरेजमेंट की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, एंड एट द राइट टाइम यू गेट द एनकरेजमेंट एंड द गाइडेंस एंड आपका उसके कारण आपका लाइफ चेंज हो जाता है. लेकिन कितनी बार होता है ना, इन द कोर्स ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं कि किसने हमें कब कब कितनी मेहनत से और कितनी मदद करी ताकि हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर भी हम आज हैं. देयर आर मेनी पीपल बिहाइंड अस हु हैव इन सम और द अदर वे हेल्प्ड अस. ना नहीं भूलते हैं क्या? क्या हमको हर एक व्यक्ति जिन्होंने हमारे को इतनी मदद करी, क्या वो हमें याद है आज के दिन में? So today is the chapter when we need to remember all of them जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ ऐसा किया, इतना असरदार कुछ ऐसा वाक्य हुआ उनके साथ जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल गई. एंड दे वेर द कॉज, पिवोटल बोलते हैं ना, दे वेर द रीजन जिससे हमारा लाइफ का जो डायरेक्शन है वो मैजिकली बेटर की तरफ हमने अपना जीवन को चेंज किया. एंड इट कैन बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी एन अननोन पर्सन, इट कैन बी जस्ट आप. और क्या पता कभी कभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होगा, आपके पीठ पे सिर्फ थपथपाया होगा एंड दैट गिव यू सो मच ऑफ एनकरेजमेंट एंड रीअश्योरेंस कि बेटा आई एम देयर विथ यू, यू कैरी ऑन. एक वो रीअश्योरेंस भी बहुत होता है ना कभी कभी लाइफ में कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं. अगर आपके पेरेंट ने बोल दिया बेटा जिंदगी में आपको जो काम करना है करो, आई एम देयर विथ यू, isn't this a life changing कि you have something to fall back on? Isn't this a life changing incident? And there are maybe a parents जो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको तो बिजनेस में ही आना पड़ेगा, we will not support you taking up a startup or something. स्टार्टअप आप करो तो आप जानो, आपका काम जाने, where will you get that starting amount from? And there is another parent who says ki you do your startup, you chase your dreams, tell me the amount of money you require initially, I am there to support you, and if you don't happen to succeed you have me to fall back on. So isn't your parent the life changing इंसान आपके लिए कि आप अपने ड्रीम्स को चेज कर सको? So it can be anybody, as मतलब it can be an कोई हमारे डेटी भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, उनके वर्च्यूज को हम इतना मानते हैं कि उनके जीवन जो आज हमारा जो इतना सारा हमारे पास जो रामायण महाभारत, इतनी सारी पुराण, इतने सारे हमारे पास जो स्टोरीज है, उनके मार्गदर्शन में क्या पता हमने अपना जीवन चेंज किया उनके कारण. So it can be anything that you want. It can come from any book, it can come from any person, it can come from anything. वो हमें आज पहचानना है कि हमारा लाइफ किस वजह से चेंज हुआ है. My grandmother gave me my love for books, cooking,
and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside was influenced where I've lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. तो रोंडा बर्न अपने इंस्पिरेशन को, अपने लाइफ चेंजर को बता रही है कि उनकी ग्रैंडमदर उनकी इंस्पिरेशन रही थी राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। उनकी जो जो शौक उन्होंने उनको मिले ना, जो जो हॉबीज, जो जो एक संस्कार उनको मिले, लव फॉर हर बुक, फॉर हर कुकिंग एंड द काइंड ऑफ नेचर पर्सन जो वो थी, जिसके कारण उनका घर वो जहाँ पे उन्होंने लिया, दैट इन्फ्लुएंस्ड हर। सो हर एक जन, आज हम जिस घर में बॉर्न हुए हैं ना, उनके संस्कार, उनकी परिस्थिति, उनका एनवायरनमेंट, जो सपोज अगर आज हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो हमको कुछ कुछ सिखा देते हैं, अननोइंगली वी इम्बाइब फ्रॉम देम। हैवंट वी ऑल नोन? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, कई सारे सिबलिंग्स होते हैं, कई सारे कजन्स होते हैं। उस नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी हम कितना कुछ पिक कर लेते हैं उनसे। क्या पता लव फॉर किसी को म्यूजिक सुनने का, बहुत बड़ों को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, या गाने का बहुत शौक था, या घर पे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे लोग बजाते थे कि दैट म्यूजिक गॉट इम्बाइब्ड इन मी, एंड मैं बहुत अच्छा एक सिंगर बन गया, या फिर बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन गया, या जो बन गया। ये हमारे घर के संस्कार या हमारी घर की जो ट्रेडिशन है, जो पेरेंट्स के हमारे सिखाए हुए कल्चर्स हैं, वो हम जो इम्बाइब करते हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग आवर लाइव्स। डू वी ऑल अग्री टू इट? Yes. हमारे हर एक जन, हम आज जो हैं, जैसे हैं, it is because of what we have been taught from our childhood. It is because what we have seen in our houses being happening in our houses. जैसे रोंडा बर्न अपनी ग्रैंडमदर को देखकर वो एक मतलब बुक्स के पैशन के साथ वो इवेंचुअली राइटर बनी। उन्होंने थैंक यू बोलना अपनी ग्रैंडमदर से सीखा, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन में रखना चाहती थी, और उन्हें स्टील हैंड के साथ, कढ़ाई के साथ उनको थैंक यू बोलना सिखाया। इट इज रिटन ओवर हियर ना, स्टील हैंड के साथ। सो जो बचपन में हमें सिखाया जाता है, जो हमें बहुत ज्यादा मे बी कड़ाई लगती है उस वक्त, लेकिन लेटर ऑन इन द लाइफ ऑल दोस टीचिंग्स हेल्प अस सो मच। शायद आज हमको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारी बचपन की क्या टीचिंग आज हमारे लाइफ को इतना सुंदर शेप कर गई है। व्हाट हैज हमारे अंदर क्या एक ऐसा कुछ इंस्टिल हुआ जिससे हमने अपनी लाइफ में बहुत बेटर लाइफ को लीड करना सीखा। I learned a lot from my parents. My father was a persistent and a very hard-working person. उनसे हमने मेहनत करके, मतलब हार नहीं मानना। He at one point of time उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आया था, लेकिन उन्होंने अपने जिद से, अपनी मेहनत से, we came up flourishing out of it. I learned persistence from him. I learned hard work from him. I learned to celebrate छोटी छोटी खुशियां। एक छोटा सा ऑर्डर आता था ना, he used to take us out. आज तो घर पे खाना नहीं बनना है, आज तो we have to celebrate this. That celebration आज मुझे समझ में आता है कि कितना important था। He celebrated small things, छोटा सा चीज, and we used to just move out of the house, do something and celebrate it. I mean, I'm so happy to
have learned all these things unknowingly. book का कुछ पार्ट उन्होंने मुझे सिखाया था. Then my mother selflessly वो हम लोगों के लिए करती थी. उन्होंने अपने आप को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी. So I learned you need to give yourself also that place. I tell my mother now, अपने आप के लिए जियो, because the book has taught me that you need to live for yourself first and then for others. So there are so many things that we learn from our environment, from our parents, from everything that we हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, friends के साथ we learn a lot of things, office में colleagues के साथ we learn a lot of things. And she is not alive. Rhonda Byrne की mom, grandmother is not alive, but I continue to be grateful for her. She's saying मैं अभी तक, आज तक उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस का काम किया. एंड उनका जो जीवन था, अगर हम उनकी जीवन शैली को देखें, उनके पूरे जीवन शैली को उन्होंने एक रास्ता दिखाया उनकी ग्रैंडमदर ने. सो शी वाज अ लाइफ चेंजर फॉर रॉन्डा बर्न. सो टुडे वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट आर लाइफ चेंजर्स, जो हमारी लाइफ को शेप करने के लिए हम किसको ग्रैटिट्यूड दे पाएंगे आज. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone, sometime during the daytime. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out aloud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you're grateful to them and how they affected the course of your life. So our assignment today is कि हमें अपनी अपनी जिंदगी में झांकना है. बचपन से लेके अब तक वो कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेहतर होने की तरफ मोड़ दिया. हमने कुछ बेटर करना सीखा, हमारी जिंदगी के डिसीजंस कुछ बेटर हुए. they can be any people, and you need to sit at a quiet place alone. आपको अपने लिए आधा पौना घंटा निकालकर आप अलग से एक जगह बैठिए एंड उन 3 लोगों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन में ये खुशियां लाई या ये आपके एक्सपीरियंस को चेंज किया, आपकी जिंदगी को बेटर की तरफ मोड़े. एंड वंस आप एक जन के साथ एक जन को याद कीजिए. एंड जैसे आमने सामने हम जूम पे बैठे हैं ना, वैसे ही आप सोचिए कि वो आपके सामने बैठे हैं एंड फेस टू फेस आप उनसे बात कर रहे हो. तो आप उनसे बात करते हुए उनको आप क्यों ग्रेटफुल हो, इस चीज के लिए आप उनको बताओ. टेल द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल. अगर एक से ज्यादा रीजन है, आप उनको नंबर ऑफ रीजंस पूरा गिना दीजिए जिन जिन चीज के लिए आप उनसे ग्रेटफुल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेयर टू से माई लाइफ चेंजिंग, अगर मुझे 3 लोगों में से दो तो मुझे अभी याद आ रहा है जिनके लिए मैं बहुत, 2-3 मैंने ऑलरेडी पापा के लिए बता दिया, मेरी मॉम के लिए बता दिया. लेट मी टॉक अबाउट 2 more people who I am very grateful about. I had a breakdown in my health a few years back, जिसके through I came into pranic healing. So pranic healing happened in my life, and a friend of mine, she is in Bangalore, who introduced me to pranic healing. That changed my entire course of life, that changed my entire thinking, that changed my way I led my life. So that was a life-changing episode for me, and I am so grateful. And whenever I think about pranic healing, she just pops out of my mind, and I am so grateful to her for leading me to this teachings. Second, I am grateful to, right from the beginning, to Rhonda Byrne, to Ashmi ma'am, to Sarita Bhavi, to Rajan sir, to Annie, who I think I have a list of mentors, list of people whom I am thankful to for getting me into this journey of magic.
After I have joined the journey of magic, there has nothing looking me back. This was something which I felt is my purpose. I wanted to serve, and this has given me the platform right from my home to serve, to spread happiness, to give what I have got in abundance back to the society. And these are actually my, it has changed the course of my life, and I'm so grateful. So this is how we need to, and when I am saying today, now I'm generalizing and saying, when I will do my exercise, I will place one person in front of me and I will talk to the person, telling how grateful I am for that person, for the reasons why I am grateful for the person. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, nor receive the magical results. So we need to do for all the 3 of them at one go. सपोज हमने एक के साथ सुबह किया, एक के साथ दोपहर को किया, एक के साथ शाम को किया, तो वी आर थैंक यू बोलने का जो एक अंदर से जो डेप्थ फीलिंग आती है आपकी लाइफ में, जो आपके चेंजेस आए उसके लिए, वो ब्रेक हो जाएगा, एंड द मैजिकल रिजल्ट्स व्हाट वी नीड आउट ऑफ दिस प्रैक्टिस वो नहीं मिलेगा. टू गेट अ फार डीपर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अगर हम आधा पौना घंटा निकाल कर बैठ जाए, आधा पौना घंटा भी शायद नहीं चाहिएगा, इफ यू नो whom you are grateful for. अगर आपके पास वो पिक्चर क्लियर है तीनों लोगों का कि जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, शायद पहले उन आप असर्टन कर लीजिए 3 लोग कौन है, and then hardly it will take 5 to 10 minutes for you to do this exercise, just to talk to them, to tell them how grateful you are. You don't have to go to tell them in person, you just have to look into them, look into as though the person is in front of you. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It is very important that you say the reasons why you're grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you're writing a letter. So यहाँ पे रोंडा ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, एंड उन्होंने पर्सन का नाम लिया है और किस किस चीज के लिए वो उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है. उन्होंने हर एक रीजन को स्पेल आउट किया है, लिखा है, एंड लास्ट में उन्होंने लिखा है थैंक यू सारा. So this is how we need to talk to the person जिनके लिए हम grateful हैं. उनको लास्ट में थैंक यू करना बहुत जरूरी है, रीजंस बताना बहुत जरूरी है, एक से ज्यादा रीजंस, ज्यादा से ज्यादा रीजंस जितने बता सकते हैं. कैन वी डू मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड? कैन ग्रैटिट्यूड की अति हो सकती है? ये फर्स्ट चैप्टर से हम समझ रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड की अति नहीं हो सकती. द मोर यू से, द मोर यू फील, द मोर अमेजिंग रिजल्ट्स वी विल गेट इन लाइफ. हमारा बैंक बैलेंस उतना बढ़ता जाएगा, उतनी ही स्पीड से जो ड्रीम्स हमने देख रखा है, जो ड्रीम्स हमने अभी तक लिख रखा है, वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ता जाएगा. जितने भी पॉट होल्स रास्ते में वो ड्रीम्स के रास्ते आ रहे हैं, वो तो हम ग्रैटिट्यूड से भरते जा रहे हैं ना. There won't be any more speed breakers in the road to our success, in the road to our dreams.
सो वो ड्रीम्स बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड यू विल सी दैट ये लिख रहे हैं मैजिक विल एक्सप्लोड इनटू योर लाइफ। यहाँ उन्होंने एक्सप्लोड लिखा है, मतलब हमारे जीवन में विस्फोट हो जाएगा, मैजिक का विस्फोट हो जाएगा, मतलब ऐसे जैसे वॉल्केनो का विस्फोट होता है ना, और लावा सब तरफ फैल के पूरे सबको कितने कितने किलोमीटर तक चला जाता है, उसी तरह। Just a second, this is important. Just a second. Hello. Yeah. So उसी तरह से they're saying ना, you can't do enough. You can't do enough of gratitude. कभी gratitude is, I mean, it's always there's no limit. मत सोचिए यार 5 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, काफी हो गया। अगर पॉइंट्स और आ रहे हैं दिमाग में तो just continue. Don't look at the watch. Just give yourself some time, close yourself in a room where there's no sound, mobile on silent, and just do the exercise. And how magic will continue in your life, na? And how things will change. It actually makes a lot of difference, because what you are doing, जिन लोगों को आप भूल चुके हो कि उन्होंने हमारी लाइफ में इतना चेंज किया and itna impact laya. Like I was remembering when, as Shalini was talking, I changed schools when I was class 5 mein, and the friends I had from that school, and school change karne ka koi irada nahi tha. My eldest sister, mere se 8-9 saal badi hai, wo mere lagi, and she said, I'm going to put you into this school. And we were too young, just 8 years, 9 years old, and she changed my school, and that impacted my life so deeply. So deeply. I can't tell you. Thank you, Bhabhi. So what we were, हाँ, तो मैजिक हमारे लाइफ में ऐसे हमारे लाइफ में भर जाने वाला है जैसे हर तरफ खुशियां फैल गई है। सो उस तरह जैसे हम दिवाली पे पटाखा फोड़ते तो ऐसे एक्सप्लोड होके जाता है, एंड कितना एक्सपांड में वो फैल जाता है, उसी तरह मैजिक इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन आवर लाइफ अगर हम ये प्रैक्टिस करें। एंड इनको इसमें रोंडा बर्न ने इसको बहुत पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड बताया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और अगर हम ये करेंगे तो हमारी जीवन में खुशियां आने ही वाली है। नो बडी कैन स्टॉप फ्रॉम द ड्रीम्स दैट आर गोइंग टू कम टू अस। जो हमने सीक्रेट बुक में देखा था ना कि वो अंकुरित होके बस धरती से निकल रही है, और कहीं ना कहीं वो कहीं अगर हमने उसको कहीं नेगेटिविटी में चले गए या कुछ उल्टा फुल्टा हमने बातें कर दी, बोल दी, सोच दिया, कंप्लेन कर दिया, बिलो द लाइन के इमोशंस में चले गए, तो वो फिर से नीचे चला जाता है। But this practice of ours is such a powerful practice of gratitude, जो उसको तुरंत ऊपर स्प्राउट करने के लिए मजबूर कर देगा हमारी लाइफ में। It is that powerful. And suppose we are not in a position to बात करने के लिए, हम उनको loudly बोल नहीं पा रहे हैं अपने मन की बात, अपने reasons नहीं बता पा रहे उस इंसान को कि हमको किस लिए आपने हमारी जिंदगी में, तो आप लिख भी सकते हो, जैसे कि एक लेटर लिख रहे हो उनको उनके नाम से एड्रेस कीजिए, एंड लास्ट में जैसे इन्होंने पूरे, इट इज लाइक राइटिंग अ लेटर ओनली ना, ये एग्जाम्पल जैसे उन्होंने लिखा। So we can write a letter stating all the reasons and saying thank you. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life. And that's the magical power of gratitude. So, हमको लाइफ में हमारा पर्पस क्या है? क्या हम रोंदू एंड सैड एंड सल्किंग करते हुए इंसान बनना चाहते हैं कि वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी वांट टू लिव अ जॉयफुल पीसफुल लाइफ? एंड अगर हमने ये एक्सरसाइज अच्छे से, जिस तरीके से रोंडा बता रही है, उस तरीके से अगर हमने कंप्लीट कर दी, इट विल इंश्योर
सबसे पहले वो खुद हमें बहुत हैप्पी करेगा। किसी को हम जब अप्रिशिएट करते हैं, किसी के लिए अगर हम अपने दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको खुशी मिलने से पहले द थॉट ऑफ इट, क्या हमें खुशी नहीं देता? हमें क्या पहले खुशी नहीं होती है कि वाह सच अ ब्यूटीफुल थिंग, तब तो हम अप्रिशिएट करते हैं ना। सो द फर्स्ट हैप्पीनेस हैज टू कम टू अस, एंड इट विल वंस वी आर हैप्पी, तो हम वो वाइब्रेशन पे आ गए यूनिवर्स के, जहां हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है। तो जहां यूनिवर्स की हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे साथ आ जाती है, वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर वंडरफुल थिंग्स, हमारा ड्रीम। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट वी वांट. Don't we all know? I think this is the 12th day of the 14th day that way, but 12th day of the book of the chapters. So we have to know what we want. And अगर suppose किसी ने आज भी अभी तक नहीं जाना है, नहीं समझा है what you want, please do so today. Tomorrow is again a chapter where हम लोग को ड्रीम कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्यों लिखना है, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो चैप्टर है कल का। सो वी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट कि आज हमारे पास ये लास्ट दिन है जब हम समझ लें कि हमारे ड्रीम्स हैं क्या, हमें चाहिए क्या। मोटा मोटा लिख लें आपको क्या चाहिए, रिफाइन आप जैसे जैसे आपको और समझ में आएगा आप उसको रिफाइन करते जाना। लेकिन अगर हमें पता है कि चाहिए क्या, ओनली देन कैन बी अट्रैक्ट ना। नहीं तो जो यूनिवर्स को मन किया वो आपकी तरफ भेज देंगे। जो यूनिवर्स को मतलब जो आपको लगा, जो मतलब आ गया आपकी तरफ वो भी ठीक है, जो नहीं आया वो भी ठीक है। अगर आपको ऐसी जिंदगी चाहिए, देन एवरीथिंग इज फाइन। वी ऑल्सो हैव सम वांट्स एंड डिसलाइक्स ना। तो आपको वांट्स में अगर चाहिए तो let's do this chapter properly. Let's think about the people who have made a difference in our life, and to increase the speed of dreams coming towards us, we need to be in the happy जो अभी तक तो समझ गए ना, above the line के इमोशंस में रहना है। एंड above की the line के इमोशंस में हम कैसे रहेंगे? अगर हम ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे। एंड एक और चीज है ना, मूड शिफ्टर्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट मूड शिफ्टर्स ऑल्सो पहले ना, कि आपको क्या हैप्पी बनाता है, उस चीज का भी अगर आप एक लिस्ट बना के रख ले। जैसे हमने आई लव टू, बहुत सारा कुछ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था ना, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, या आई लव टू डू गार्डनिंग, आई लव टू बी अटेंड दिस सेशंस, काफी सारा कुछ आया था। So these are our mood shifters to be in the happy zone. So we can use them and be in the happy zone to attract wonderful things in our life. ये पढ़ूं? हाँ जी। Or 12. Magical people who made a difference. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. 3. Work through the list one person at a time. And while talking out aloud, tell each person the reason why you're grateful for them and exactly how they affected the course of your life. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Anita ji, will you like to explain the first and the fourth step in our assignment today? Yes. Yeah, the first step is that we have to make a list of 10 blessings, whatever we are grateful for. After writing that, then we read that full list again. And after reading each one, we have to say 3 times, we have to say thank you. Means we are saying thank you for what happened in the past, in the present, and thank you for the future.
and we should feel grateful for that blessing. Bhavna, apni feelings is the most important. And the fourth one, like before we go to bed, we have to take the magic rock, which is there. Like mine is here. It's just next to my bedside. And at night, I say what are the best things that happened. और उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी चीज हुई वो मैं बोलती हूँ मेरी मैजिक रॉक को at the end of the day. Wow, it's what clarity you have. So our Thank you. practice of count the blessings और magic rock अनीता जी ने बहुत अच्छे से explain कर दिया. आज का practice हमारा है कि we have to choose 3 people जिन्होंने हमारी life में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा impact डाला है, कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे लिए कर दी जिससे हमारा life पूरा turn हो गया. And आप 3 लोगों को choose कर लीजिए. Then sit at one place alone, अकेले बैठिए, एकांत में बैठिए, जहां आपको उस 15-20 मिनट के लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी एक जगह चूज करके बैठिए और एक के बाद एक 3 लोगों को 1 by 1 करके उनको बताइए कि आप किस लिए ग्रेटफुल हो, सारे रीजंस गिनाइए, as many things what you can think of जिनके लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, सारे थिंग्स उनको गिनाइए and you will see that there is the happiness explodes in you and you attract magic into your life with great speed. Thank you so much. Thank you, Anita ji, for reading the chapter so beautifully. Thank you. My pleasure for giving me the chance. मुझे भी बहुत मजा आया पढ़ने. And आपने जो explain किया, that was also so, मतलब इतना ज़्यादा clarity थी ना आपको, it was beautiful. Yeah, because I'm practicing, no? Practice करते तो हो ही जाता है, अपने जहन में आ जाता है वो. Correct. खुशबू जी लिख रही, you both are the kind of person for me. Thank you. जैसे हमारे को बहुत लोगों ने गाइड किया and we always thank universe, हम मास्टर को, हमारे प्राणिक हीलिंग के जो मास्टर है, जो गॉड है, और सारे हम सब हमेशा बोलते हैं कि आपने हमें जरिया बनाया, उसके लिए thank you so much. So anyone would like to, किसी को याद आया कि I have this kind of person? You can share now. You can do the exercise later. Just sharing will help others also get ideas. क्या बहुत हमारे ideas आते नहीं है, किसको याद करूं? मैं share करूं? Yes. Yeah, I was very मेरी life में मेरी sister ने मेरे को बहुत impact किया. Like शादी के पहले, like she used to work in a nursery school. So उसने बोला अनीता तू भी कुछ कर. I was just in 12th standard. So she said, you take up tuitions. And then I started taking tuitions. और जब पैसे आए, that's the first time I was earning the money. And it was a very big thing, for me. Wow, मैंने मेहनत की और पैसे आए, ऐसे करते हैं, That's the first time I earned money. So I'm very grateful to her. Though she's not there now, she was the one who encouraged me to go out and earn money. Wow. Here, before I ask Radhika to share, even I'd like to say, when you mentioned that, I had started writing books about maybe 15, 20 years back. I mean, I had read in some, it was just, an education book. And piche tha, if anyone would like to write, or anyone would like to, help in writing, helping children write by books, by becoming a sort of a writer, you're most welcome. So I approached the publisher of this publishing house and I began writing, writing guidebooks for children. And I did it as honorary because I used to really enjoy it. When like, wow, I can help children in some way. Mera education, yaar, kuch to kaam aa raha hai. Otherwise, I was just helping my husband in his business. So, and then after 2-3 years, or I don't remember the exact time, one day he sent me payment. I said, nahin, I'm not taking this payment. Maine payment ke liye kiya hi nahi. But he said, no, you keep it. You will realize the difference, that you have done it. And actually that feeling now, wow, I have earned this. Koi kami nahi thi, but that feeling that, wow, I have earned this. I'm really so great. I can see you, Subham. I thought you left at 40. I just saw you there. So that was Subham's father. So, he's no longer, but he passed on, but it was such a deep
It was such a deep impact in my life, so much impact. So thank you, Anita ji. See, you revived that in me. So that is the purpose of this sharing. You know, we can help each other remember such people. Yes, Radhika ji. I want to say about one of my teachers. So she taught us from class 5 to class 10, and she impacted in a way like the way she used to smile, the way she used to talk, the way she used to teach. So उनको देख के जैसे मैंने भी आगे डिसीजन किया जैसे टीचर बनना है तो so she was there. You are a teacher? Yeah. Okay. हाँ, Wow. so yeah, तो वो एक मतलब वो अपने तरीके से उन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा था। जैसे वो सिखाती थी, बात करती थी, हम लोग से इतने क्लोज थी एकदम, तो वो चीज जो है। So आपके रोल मॉडल रही थी वो, फिर आपके टीचर हाँ। बनने में she was instrumental. यस यस यस। Wow. एंड मुझे ये भी पूछना था, जैसे इसमें यहाँ पे 3 लोगों के लिए बोल रहे, तो हम उससे ज्यादा भी कर सकते। As of now, the book is talking about 3 people and the importance of 3 हम समझेंगे कि वो 3 ही क्यों बोल रही है. There is an importance of 3. Rhonda Byrne इतना scientifically ये book लिखी है कि nothing is without any reason. सब चीज का एक कारण है, और वो जो भी बोल रही है, अगर हम लोग by the books initially जाए ना, तो it is good. ओके ओके। और आप लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, मतलब सेशन में और प्रैक्टिस करके एंड फीलिंग मतलब वो जो एक खुशी अंदर से आप बोल रहे हैं ना, वो खुशी महसूस हो रही है अभी मुझे 5-6 दिनों में ही, वो खुशी अंदर से महसूस हो रही है। सो आई एम फीलिंग सो नाइस, आई कांट टेल यू। असाइनमेंट्स करना काम नहीं लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल काम नहीं लग रहा है, और पूरे दिन भी इतना मजा आ रहा है, इतना मतलब कि वो आप बोल रहे थे ना, टू फील अलाइव यू, मतलब एक अलग ही एक चीज महसूस हो रही है शालिनी जी। इट इज सो वंडरफुल, आई कांट टेल यू। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. हमें अब फील आने लगा है कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है क्या, क्योंकि अंदर से कुछ फील, इतनी खुशी अंदर से फील होती है कि वी डोंट लुक आउटसाइड फॉर हैप्पीनेस. यस यस यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर मैं जॉइनिंग. शेयर करूं? Yes, सोनिया मारवा। Yes, next. मैं करूं शेयर? Ajit ji next है. Let's अपने जैसे hands raised किए हैं. Oh. I'll just call out the names one by one. Yes, Ajit ji, please. Yeah, thank you so much. Actually, I would like to share. When I was a child, मैं जब बच्चा था तो actually मैं around 3-4 years था, तो मैं एक दिन कैलकाटा में ही मैं एक हमारे पास वहाँ पर घर नहीं थे, तो हम एक्चुअली फुटपाथ में बैठ के पढ़ रहे थे. तो आई वाज सिटिंग ऑन द फुटपाथ एंड जस्ट डूइंग माय होमवर्क. क्लास में एक हिंदी स्कूल में पढ़ता था, उसका क्लास वर्क अपना होमवर्क करता था, वहाँ बैठ के करता था. तो हमारे नेबर्स एक बगल में हमें देखें, तो ही केम एंड ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो. तो बहुत तरह का क्वेश्चन आंसर ही आस्क्ड मी. तो बहुत सवाल जवाब करने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगा, तो उसने मेरे पिताजी को बोला कि आप इनको कुछ अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भर्ती करते. तो पापा ने बोला मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन अच्छा स्कूल है, कौन बुरा स्कूल है, या कौन सा स्कूल अच्छा होता है. तो ही सेड ओके, नो प्रॉब्लम. तो विथ हिज हेल्प आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ हॉस्टल, जहाँ मैं 14 साल बिताया था उसके बदौलत, और एक मिशनरी स्कूल थी कलकत्ता में. तो 14 years I was there in that school, and उस स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. तो it was all blessings through him which I got, कि उसके बदौलत में एक अच्छे स्कूल में पढ़ा, फिर वहाँ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला. तो that person had played a very important role in my life from the childhood. और जब तक मैं अपना कॉलेज किया, he was always with me till he passed away in an accident. बट उनकी बात अभी भी मुझे याद आती है. जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई एम ग्रेटिट्यूड उनके थ्रू में प्रे करता हूँ कि, और उनको थैंक यू बोलता हूँ मैं कि एटलीस्ट जो भी आज मैं हूँ थ्रू एजुकेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम. तो आई वुड लाइक टू थैंक, उनके नाम है मिस्टर कपूर अंकल, उनको मैं बोलते थे. तो ही वाज जस्ट माय नेबर, तो ही वाज जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू मी, और उनके बदौलत ही मैं सब कुछ पाया हूँ आज थ्रू एजुकेशन. तो आपको ये फील होगा ना, उनको जितना भी आप ग्रैटिट्यूड दे वो कम है,
ग्रैटिट्यूड जी की जी अति नहीं हो सकती है। दिस करेक्ट इज करेक्ट सो, आपके बातों से फील हो रहा है कि आप जितना भी उन्हें ग्रैटिट्यूड दे उतना कम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई ऑलवेज अभी भी उनके मैं फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। अभी उनका बेटा है, उनका बेटे साथ उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो उनके घर जाता हूँ। तो मतलब इट्स रियली हार्ट टचिंग। मतलब मैं वो चीज भूल नहीं सकता हूँ। मैं कभी भी कुछ भी अगर कुछ नया भी खरीदता हूँ ना, जैसे मैं एक बार मैं गाड़ी भी खरीदा, 4 व्हीलर भी खरीदा, तो सबसे पहला चीज मैं किया कि गाड़ी उनकी उनके गाड़ी घर के दरवाजे के सामने में खड़ा किया। और मैं उनके बेटे और उनके बहू को मैं बोला कि आप आइए थोड़ा देखिए, ब्लेसिंग दीजिए, बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रॉम दिस हाउस। तो इट वाज रियली ग्रेटफुल। लाइक मैं वो चीज मैं भूल नहीं सकता हूँ। वाओ, सच अ पावरफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आरती जी, आप शेयर करना चाहते हो? Yes, ma'am. Like we were in city. हम born brought up city के हैं, तो जब हम गांव जाते थे तो मेरे ताया जी जो आर्मी रिटायर्ड कैप्टन थे, तो ही वॉज वेरी वरीड कि ये लड़कियां शहर की हैं, इनके साथ कौन शादी करेगा, ये कैसे एडजस्ट होंगी। तो वो हमसे खेतों में काम करवाते थे। मतलब वो हमें स्पेयर नहीं करते थे। और मेरा उनसे बहुत झगड़ा होता था कि आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हम साल में एक बार आते हैं और आवर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू फॉर ऑल दिस टफ वर्क ना। बट व्हेन आई गॉट मैरिड और व्हेन आई वेंट टू मींस अपने इन-लॉज के साथ फील्ड में गई, तो देयर वाज अ बाजरे का खेत, और मुझे पता नहीं था बाजरा जमीन के ऊपर होता है या नीचे होता है। लेकिन मैंने वो बाजरा काटा और सारा काम किया, और एवरीवन लाइक कि ये लड़की कैसे कर रही है। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे ताया जी की ट्रेनिंग है। मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको कहा कि अगर मैं आज अपने इन-लॉज के यहाँ बस गई हूँ और अगर मैं अच्छी बहू हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टफ ट्रेनिंग, एंड थैंक्स फॉर दैट। वाओ, सो वी एक्चुअली डोंट रियलाइज ना कि जो पेरेंट्स हमारे साथ शक्ति बरतते हैं, या फिर दे आर टफ ऑन अस, या फिर डांटते हैं, या फिर मजबूर करते हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, वो आगे जाकर लॉन्ग रन में हमें कितना हेल्प करने वाली है टू शेप आवर लाइफ, टू maybe these small things give us that kind of an experience जहां हम endurance सीखते हैं, जहां patience सीखते हैं, sharing सीखते हैं. So this is goes a long way in making our lives beautiful ahead. Thank you so much for sharing, Dr. Aarti. थैंक यू। इवन आप सब, आई फील लाइक कि आप लोगों का तो मैं थैंक्स वर्ड इज वेरी स्मॉल फॉर यू पीपल। आप अपना टाइम स्पेयर कर रहे हो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे आप लोगों का रिटर्न कर पाऊंगी। लाइक अगर हमारे रिश्तेदार हैं, आर मदर, माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हम उनका किसी ना किसी वे में रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो, आप कैसे हम लोग कीजिए ना, ग्रेटिट्यूड स्प्रेड कीजिए ना। दिस इज हाउ वी हैव लर्नड एंड वी आर स्प्रेडिंग, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू टू स्प्रेड दिस बुक एवरीवेयर, दिस ग्रेटिट्यूड। अगर आप किसी भी एक बंदे के साथ भी ये बुक अगर शुरू कर लो आप अपना, आप पहले पूरी अपनी एक जर्नी खत्म कर लीजिए इस बुक की, एंड उसके बाद इफ यू कैन स्टार्ट दिस बुक विद समबडी, स्प्रेड द मैसेज अराउंड, इमेजिन कीजिए हम कितने लोगों को टच कर सकते हैं। This is how we can this, and by taking these sessions, Bhavi, don't you agree that we are paying our gratitude to our mentors? उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें बीज डाला है, that is, and ये sessions लेने से पहले the first, I think we have told this repeated number of times, जब first हमने एक जन के साथ session दिया था, इधर सुनते थे इधर से निकालते थे, इधर सुनते थे इधर से निकालते थे। This is how it was. खुद का इनपुट होता नहीं था उस वक्त, इतनी समझ नहीं थी उस वक्त। दिस इज बाय टेकिंग दिस बेबी स्टेप्स यहाँ तक पहुंचे, आप बहुत आगे तक जाओगे, बिकॉज आप लोग डे 1 से असाइनमेंट्स इतना अच्छे से कर रहे हो। सो यू इवन मैं तो कुछ और ही लेवल, अब जैसे मॉर्निंग में मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ, और आज मैंने ऑल ऑफ सडन अपना मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि आचार्य जी का सेशन है 7:15 बजे, और बाय 7:30 आई ज्वाइंड इन। मैंने आचार्य जी के साथ भी बात की, यही बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं सेशन के टाइम पे कैसे लॉग इन कर लेती हूँ, कैसे मोबाइल देख लेती हूँ, और मैं कोई जो आप लोग एक्टिविटीज बताते हो, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपका सेशन लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग सो लाइट।
सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हुए हैं, इन लॉज वैसे हैं, बच्चे वैसे, सब कुछ वैसा है, स्टिल आई फील मतलब नजरिया चेंज हुआ है। तो आचार्य जी सेड कि जब आप एक्टिविटीज करने लगोगे तब आपको लगेगा कि वो लोग भी चेंज हो चुके हैं घर में। ट्रू, वेरी ट्रू। Exactly. मैं वही बोलने वाली थी, इतना करके ऐसा लग रहा है, तो इमेजिन असाइनमेंट्स करके क्या लगने वाला है, क्या खजाना Yes. हाथ लगेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं लॉग इन कैसे कर पा रही हूँ, मैं क्यों कनेक्ट हो रही हूँ। That's It means attraction, law भगवान of चाहते। attraction. अभी यू आर स्टडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो तो अपना काम कर रहा है ना, that is working in your life. Didi, somewhere you are wanting these things in your life. You have accumulated, or you have attracted all these things. Thank That's you, why Neetu. are Thank getting you for your message. Just because of you, I joined this. Thank you very much. Thank you all. लेकिन Thank you बहुत so much. अर्नेस्टली Yes, Sonia रिक्वेस्ट जी। करेंगे आरती जी की आप अपना असाइनमेंट्स प्लीज कीजिए। आप जितना रौंडा बोलती हैं अगर उसका आधा भी असाइनमेंट करना शुरू कर लेंगे ना, अगर वो 3 लोगों को ढूंढना बोलती हैं, आप एक जन को तो ढूंढो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकोगे। वो 10 नियामतें लिखने बोलती हैं, आप 5 ही लिख के उनको पढ़ लो। वो मैजिक रॉक के साथ सोने के लिए बोलती है, स्कैन नहीं करना है, एक बेस्ट थिंग, एक चीज बहुत अच्छी लगी उसको ही पकड़ के मैजिक रॉक के साथ थैंक यू बोल दीजिए। विश्वास कीजिए, इट विल कॉज अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। Yes, Thank you Sonia once जी। again, all of you. हाँ जी। मैं सबसे पहले अनीता जी को थैंक यू बोलूंगी। अभी एक्चुअली मैंने जब सेशन अभी ज्वाइन किया ना, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं पहले भी कर चुकी, तो आज मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे मैजिक बुक में इंट्रोड्यूस किया, मैं उनको थैंक यू बोलूंगी। फर्स्ट जो मेरी मैजिक बुक की मेंटोर थी मेघना जी, उनको थैंक यू बोलूंगी। और थर्ड मैं सोच रही थी किसको बोलूंगी। अनीता जी ने जब शेयर किया तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि मैं बहुत बचपन से मतलब लोगों को सोशल, मैं बहुत छोटी थी, 7th 8th से मैं कोशिश करती थी लोगों को हेल्प करने की। तो ना मैं ऐसे बोला करती थी कि एक दिन मैं अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगी जो लोगों की हेल्प के लिए होगा। और मैं ये बोलती थी और मैं भूल चुकी थी। अभी हार्डली 8 या 9 साल पहले मेरे ब्रदर की फ्रेंड की वाइफ मिली और मुझसे बोली तुम्हारे उस सपने का क्या हुआ। मैंने कहा, कौन सा सपना भाभी? तो उन्होंने कहा जो तुम कहती थी बिजनेस कम सोशल वर्क करोगी। वो एकदम से स्पार्क किया। मैंने कहा अरे हाँ। और फिर उसके बाद मुझे क्रोएशिया में गिनीज मिला। उसके बाद मैंने उसी को मतलब अब मैं इस समय नेहमत के नाम से कर रही हूँ अपना छोटा सा, अभी स्टार्ट किया है। बट वो आज मैंने कहा आज मैं मतलब थर्ड पर्सन जो है वो मुझे मिल गया, मैं प्रीति भाभी को बोलूंगी। वाओ वो वाओ। अनीता जी ने जैसे ही बोला मुझे इस पे याद आया, अरे प्रीति भाभी को भी बोला ना, नहीं बोला मैंने आज तक, बहुत सारे लोगों को बोला। तो मतलब कहने का कि जब ये आरती जी बात कर रहे थे ना, आरती जी आपको मैं जो बताऊं कि आपको पता नहीं है आप कौन सी जर्नी में है, कहाँ से क्या आने वाला आपको खुद नहीं पता होता। कौन सी बात हमको एकदम यूनिवर्स ऐसे कहेगा कि ये लो करो और जाओ यहाँ से। कई बार ऐसा होता है, पता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए बात कर रहे हैं, एंड वहां से हमें अपना इनपुट मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली ये एक बार अरविंद सर ने शेयर किया था ये चीज। अरविंद सर का जब क्लास लेते थे ना मॉर्निंग में, तो उन्होंने शेयर किया था कि ऐसे वो लोग जब वहाँ ऋषिकेश रिट्रीट में वो लोग गए, तो वहां ना एक लेडी अपने हस्बैंड को डांट रही थी कि मैं अकेली औरत सारा दिन काम करती हूँ, तुमको समझ में नहीं आता। तो उन्होंने जब हमारा पहला सेशन लिया था तो यही कह रहे थे कि मैंने सेशन लेने का मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा फ्लू है मैजिक। जब मैजिकल फ्लू वाला हुआ था तब अरविंद सर ने ये बात शेयर की थी। ये अरविंद सर ने कई बार बोली है ये बात। हाँ मैंने भी खैर अरविंद सर और आश्विन मैम, मैं एक चीज और शेयर करूँ, है थोड़ा कॉमेडी है, अगर आप लोग परमिशन दे, चैप्टर से रिगार्डिंग नहीं है। बोलिए ना। मतलब मुझे खुद हंसी आती है। अभी ना कुछ मैं ऐसे ही एक सेशन देख रही थी, किसी का था पलक नोट्स करके, एक कम्युनिटी है, वो खाने पीने पे और योगा पे हाँ, मैं भी देखती हूँ उनको। हाँ जी, जर्मन से। हाँ जर्मन से। तो पलक आपको देखते हो तो आपको पता होगा, वो हर बात पे कहती है ना आप लोग मेरी शेरनियां हैं। तो वो हमेशा कहते हैं, मतलब वो जो कोई भी उनका ले रहा होता है तो कहता है आप लोग पलक की शेरनियां हैं, आपको ऐसे खाना है ऐसे खाना। मैं देख रही थी और ऐसे मेरे मुंह से निकला मैं आश्विन मैम की बब्बर शेरनी हूँ, मैं कुछ भी खाऊंगी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो परफेक्ट हूँ। और मैं अकेले बोलते बोलते इतना हंसी इस बात पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नाइस। तो यही होता है ना, दिस इज एफर्मेशंस, बिलीफ। अब आपका बिलीफ बन रहा है कि मतलब वो अपने आप से मैं तो बब्बर शेरनी हूँ, मुझे कुछ होना ही नहीं है।
तो यही आपका बिलीफ बन गया, इससे दिस इज एम्पावरिंग बिलीफ बन गया ना आपका। सच में मतलब मैं मैम से अभी तक मिली नहीं हूँ, बट मेरी अब विश लिस्ट में एकदम इतना पक्का हो चुका है ना, और मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मैं कभी जाऊंगी और वो मुझे एकदम कस के याद करेंगी। मैं हर बार यही सुबह इमेजिन कर रही हूँ उनके साथ में। वो ऐसे ही करती है। तो चलिए कुंजल जी है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? आप म्यूटेड हो क्या? आप म्यूटेड भी नहीं हो, आवाज भी नहीं आ रही है। समथिंग रॉन्ग विथ योर स्पीकर? हाँ अब आ रही। हाँ मैम, वो ब्लूटूथ कनेक्ट। मैम गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैं शेयर करना चाहूँगी, सबसे पहले तो थैंक्स मैं मम्मी का और डैडी का करूँगी, क्योंकि जो भी आज मैं जहाँ पे भी हूँ उन्होंने भी बहुत वो रोल मॉडल रहे हैं मेरा चाहे नेचर का ही है, चाहे मेरे कामकाज का जो भी रूटीन्स वगैरह है, वो सब उनकी वजह से जैसा उन्होंने मुझे सिखाया बचपन से वो सब आज तक काम आ रहा है। और टीचर्स और फ्रेंड्स उन सब का भी थैंक्स करूँगी, तो बहुत सारे टीचिंग्स काम आए, और फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी बार कई चीज़ों में अटकते थे तो कुछ आइडियाज़ देते थे, उससे मैं अब ज़्यादा आगे निकली। और एक सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक्स मेरे एक अंकल हैं, पापा के फ्रेंड। जब मेरे डैडी नहीं रहे तभी मेरा 1 साल ड्रॉप हो रहा था ग्रेजुएशन में, तो वो जब 1 साल बाद राजस्थान से आए तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई क्यों छोड़ दिया, तो मैंने कहा कि फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा है कुछ। तो उन्होंने किसी उनके पहचान के कोई फ्रेंड, उनके फ्रेंड थे, वो उनकी बेटी हैंडीकैप थी, तो वो पढ़ा लिखा नहीं पाए थे अपनी बेटी को, तो वो ऐसे सोशल वर्क करते थे कि कोई अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो ही यूज्ड टू टेल टू द ऑर्गेनाइजेशन कि इस बच्चे को आप ले लो करके, तो वो कॉलेज की फीस पे कर देते थे या पता नहीं क्या, बट मेरा एडमिशन उनकी वजह से हुआ और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद की जर्नी उन्हीं की वजह से मेरी आगे बढ़ पाई लाइफ की, तो मैं स्पेशल थैंक्स उनको मेंशन करना पाऊंगी यहाँ पे। और मैम आप लोग कितने का भी थैंक्स। सांताज और है ना हमारी लाइफ में, जी हमें जी पता ही नहीं कितने सांताज हैं। जी यहाँ एकदम सबके बीच में आपने ये बात शेयर करके ना, आपके ग्रेटिट्यूड को आपने कई गुना, you have multiplied it. थैंक यू Actually मैम। sharing here is like multiplying that gratitude. हम लोग सब भी आपके साथ कृतज्ञ हो रहे हैं, and we are blessing you. So it's very powerful sharing here. थैंक यू मैम। थैंक एंड ट्राई देखिए, मम्मी पापा का लिए हम लोग सब, अगर हम लोग मम्मी पापा ले ले तो वो तो है ही है, सो उनका ग्रेटिट्यूड तो है ही, बट ट्राई एंड फाइंड 3 स्पेशल पीपल ना, मैजिकल। जैसे आपने ये एक इंसिडेंट बताया, दिस इज सो मैजिकल। मम्मी पापा का तो करना ही है, दैट इज ओके, बट इफ यू कैन फाइंड 3 पीपल, मम्मी पापा का तो रोज भी करें तो कम जी जी। यस दिया जी, कैन यू? Good evening, everybody. Thank you for the opportunity. I would like to share about my neighbor who was more than a mother to me. So always from my childhood, my mom was a little uneducated, so she was not able to handle me that well. So she tutored me. I was born and brought up like I used to feel I'm in a Christian family because she was a Christian. So everything she made me like a proper. She used to tell me she's a Pawali and she's my fourth, means a child. I'm not able to get the words, but she had 2 sons, so I was like a daughter to her. And during my wedding, it was lot like my parents were worried about how they will pay for everything, and we were from a little middle class family. So she was in her last breath. So she told her son, give 1 lakh to Diya. And the son brought all the good ornaments for me. It's 10-15 years before story. So today I feel like a person who is just your neighbor can do so much for you. That ornaments, so it's just, I'm telling you one incident, but she had guided me. She was my life. Like I also today also put my hands together and tell the universe, Mama, I want a hug from you, because she used to hug that way. She was always there for me, a role model, everything for me. So I always just, she's there in me every day. Thank you so much. Thanks a lot to share. आज उनको कितना अच्छा लगेगा ना जब आप उनसे बात करेंगे, लिटरली इमेजिन ऐसे बैठे हैं अपने, एंड जस्ट टॉक टू हर,
Pour your heart out. Pushpa ji. Yes. Hi, ma'am. Yeah, I met ma'am during when Ashmin ma'am's class was there. In one those times, no, they used to do the rooms, no, like for Breakout sharing room. the experience and all. So that time I met ma'am, not you, her. Then she was saying, I was not knowing anything. Actually, I want to say thanks to the person because she was one of my colleagues. In her status, it was there like Nidhi Sehgal. I think Nidhi Sehgal. Yeah, it was there, means some gratitude courses, something is there. Then I just rang to her, what is this? Then she told, you attend it, then definitely you will be understanding, you like it. So I want to thank Purva. Her name is Purva Kanda. And I want to thank her because with that only I came into this magic. Otherwise, just knowing, like born and brought up in such a good family, giving respect, everything. But this gratitude was not there with me. Maybe the smile or feeling expression, that's one. But this word was not there. This thank you was not there. I really want to tell this story. Very. Aarti ji. Aarti ji, are you there? Yes, she just raised her hand. आप unmute कर पा रहे हो आरती जी? Meanwhile, Priyanka ji. I think Priyanka ji can share. Hello, good evening, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोथ ऑफ यू, क्योंकि बिकॉज आपकी वजह से मैं मैजिक बुक कर पा रही हूँ. मैं सुनीता मैम के साथ, सुनीता प्रधान मैम के साथ अटैच हुई थी, बट सम सर्कमस्टांसेस घर के, भाई ठीक है, चैलेंज होते थे कुछ कि भाई अब मैं रेगुलर नहीं उनका अटेंड कर पा रही थी. अभी सबकॉन्शियस माइंड का कर रही हूँ रेगुलर, बट मैं थिंक यही मन में सोचती थी कि हाउ कैन आई अटेंड द मैजिक सेशन, बिकॉज दे आर टॉकिंग सो मच अबाउट द मैजिक बुक. When I'm watching the video also, but not in coming the feel, because you are explaining and you, ma'am, are explaining very well. So now the coming the feeling, and I'm writing and doing the gratitude so much. When I start to write, I don't know 2 or 3 pages. After that, you said that you write and say thank you, thank you, thank you 3 times in each of your blessing. I'm doing right thing also. Thank you for all my mentors. Thank you so much. And second thing is that कि मेरी लाइफ में जो 3 मैन थे जो मेरे को इनकरेज करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय मदर मेरे को बहुत सपोर्ट हर चीज में किया, चाहे वो स्टडी हो, चाहे कोई काम हो या कहीं जाना हो, जहां तक वो पता था सपोर्ट करते थे. बट सेकंड जो हमारे चाचा थे, ही इज नो मोर, एंड माय चाची, वो मेरे को इतना उन्होंने हार्ड बनाया मेरे को कि वो कहते थे कि बेटा आप हर काम कर सकती हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप हर चीज कर सकती हैं. मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो व्हेन आई गेट अप इन 5:30, तो मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती थी कि मैं शाम को 7 बजे जॉब से आई केम बैक, और 12 आवर 10 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स कभी 12 आवर्स भी हो जाते थे. जॉब पे प्राइवेट जॉब थी, तो वहां पे काम करने के बाद मैं घर आए हूँ, फिर आते ही घर के काम में लगू, भाई आपको मदर की हेल्प भी करानी है, आपको सब कुछ करना है. तो कभी कभी मैं इरिटेट होती थी. तो किचन में विंडो बनी होती थी, तो मैं मम्मा को धीमे से बुलाती थी कि मम्मा प्लीज कम, मेरे को गाइड करिए, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है. तो वो कहते थे नहीं, आप बैठिए, आपकी बेटी करेंगी अपने आप. अगर इन केस वो अपने इन लॉज के यहाँ जाएंगी और वहां पे उनको जॉब भी करनी पड़े, अपनी फैमिली को भी हैंडल करना पड़े, अपने बच्चे को भी देखना पड़े, तो वो कैसे करेंगी. तो मैं इरिटेट होती थी. तो फिर आज वो चीज फील होती है कि मैं जॉब से जाने से पहले तक मम्मा को पूरा हेल्प करा के, किचन में वॉशिंग मशीन में कपड़े है, घर की क्लीनिंग है, सब करा के जाती थी. फिर 7 बजे घर पे जैसे ही एंट्री करती थी तो कहते थे आप बेटा आइए, आप 1 कप टी और कॉफी ले लीजिए, यू टेक एंड रिफ्रेशमेंट जो भी आपको लेना है थोड़ा बहुत लीजिए, गो एंड चेंज योर क्लोथ्स एंड कम टू द किचन.
ओके फाइन। 2-3 दिन ऐसे लगा, 15 दिन लगा, बहुत इरिटेट हुई कि ऑफिस से थक के 10 आवर्स के बाद आओ, फिर उसके बाद घर का भी काम करना है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या ऐसी हैबिट डाली कि आप आइए, घर पूरा खाना बनाइए, सबको सर्व करिए रात में। फिर लेट नाइट पापा आते थे अपने बिजनेस से, काम से, तो 11 o'clock वो आते थे, उनको भी खाना सर्व करते थे, कहते थे बेटा अब जाइए, अब आप सो जाइए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ी देर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं प्राइवेट एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। वो चीज आज मेरे को फील होती है। कुछ 6 years मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके रही थी, वहां पे अफ्रीका में, बिल्कुल अननोन कंट्री, नो इंडियंस वहां पे। मुश्किल से जिस सिटी में मैं रहती थी वहां पे मुश्किल से 100 या 150 फैमिलीज थी, 150 फैमिलीज थी साउथ अफ्रीका की तरफ। अब लैंग्वेज भी मेरे को नहीं आती थी, Yes, yes. तो मैंने वहां से प्रियंका जी, let's be brief और भी बात हाँ, तो करें, let's मेरे को वही था कि उन्होंने इतना मेरे को हार्ड वर्किंग बनाया कि आज मैं 12 घंटे भी अगर काम कुछ घर में पूरा सारा दिन करती भी रहूं, तभी मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं थकी हूँ। ये बुक में आई एम चैप्टर में वेरी ये लाइन आई थी ना कि पीपल जो जी आज कर जाते हैं फ्यूचर में जाके रियलाइज होता है, उस हाँ, समय तो तो रियलाइज नहीं होते। ये लाइन आज हम लोग को, हमको बहुत फील होता है। मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंक यू उनको बोलती हूँ। कभी कभी बहुत याद करती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ कि मेरे को फील नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ और कितने टाइम तक जग रही हूँ, कंटिन्यूअस काम कर रही हूँ। थैंक यू, सो थैंक आई यू, एम वेरी थैंक यू। थैंक यू। वेरी नाइस। आज Thank उनसे you. बात और कर लीजिएगा बैठ के। आरती जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच। मैं आपके सेशंस काफ़ी अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, अपनी थिंकिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है और नज़रिया देखने का भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और इस टाइम पे मैं थैंक यू एक अपनी एक ऐसी फ्रेंड को बोलना चाहूँगी जिसने, मेरी जब सेकंड प्रेगनेंसी थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे एंड मैं पूना में नई थी, तो वी डिडंट नो मच कि क्या है, कहाँ पे डॉक्टर है। और वो लेडी एक ऐसी थी जो अपने घर का काम खत्म करके आती थी, 10:30 पे मेरे पास आ जाती थी, मुझे ब्रेकफास्ट खिलाती थी, लेकर आती थी वहां से अपने घर से बना के, मेरे लिए फ्रेश सब्जी बना के लाती थी, खिलाती थी, फिर मेरे बच्चे को लेने जाती थी। आई डोंट नो कहाँ से भगवान ने उसे भेजा था। उसके बाद वो शाम को बेटे को किसी भी क्लास में लेके जाती थी अपने बच्चे के साथ, और रात को 7 o'clock वो मेरी सब्जी वब्जी बना के फिर वो अपने घर जाती थी। वाओ। तो आई कैन, मतलब आज मेरी बेटी अगर है और इतनी कॉम्प्लिकेशन 7.5 months उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, पूरा विदाउट एनी, मतलब उसने कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हमेशा स्माइल थी फेस पे। एंड आई फील कि आज अगर मेरी बेटी 18 years की हो गई है, बट आई कैन नेवर, मतलब मैं कभी उस चीज को कम कर ही नहीं पाऊंगी उसको ये बोलते हुए कि थैंक यू, तुम आज जो बेटी है वो उसी के करके है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। सो मतलब आपके इससे समझ में आ रहा है कि हाउ ग्रेटफुल शुड आई बी टू हर। ऐसे 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 शेयरिंग्स निकल रहे, आई थिंक सबका आधा घंटा तो निकल ही जाएगा इस बात करने में। 3 people, I mean, such beautiful sharing. नहीं। कुंजल जी, you want to say something again? Or Ma'am, this is about yesterday's thing. We went for a shopping, me, my husband and my child. So like कुछ चीज मैं ले रही थी और फिर वो नहीं ले पाई क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो आई वाज लाइक थोड़ा जिद कर रही थी कि मुझे चाहिए। हस्बैंड को बोल रही थी कि आपको दिलाना नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो थोड़ा ऐसे बचपना कर रही थी। तो एक जगह से हस्बैंड बोल रहे, अरे बी इन ग्रेटिट्यूड, यू शुडंट से ऑल दिस थिंग। एंड लेफ्ट साइड में मेरा सन था, वो बोला था मम्मा थैंक यू बोली है, हर चीज के लिए थैंक यू बोल। तो मैं एक सेकंड के लिए एकदम ऐसा शॉक हो, बोले अच्छा। बोले एक जगह सरिता मैम, एक जगह शालिनी मैम मुझे याद करा रहे थे, बी ग्रेटफुल, से थैंक यू। जस्ट एक नॉर्मल बात थी कल की, मैं जिद कर रही थी, अरे मुझे आपको मुझे दिलाना नहीं है शायद। सो उसकी बदली में ये दोनों मुझे बोले थे, अरे आपने तो अभी आप सीख रहे हो, बी पॉजिटिव, टॉक गुड थिंग्स, इट विल कम टू यू। यूनिवर्स बात कर रहा था ना वहां पे। तो इस तरीके से लाइक ये चीजें हो रही है, लाइक इवन तो मतलब प्रैक्टिस होने में टाइम लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई याद करा ही देता है, मजाक के तौर पे भी, पर करा देते हैं घर के लोग याद। यूनिवर्स घर के लोग के थ्रू बात कर रही है आपसे। जी। Thank you, ma'am. You have raised your hands. I think Khushbu is there. Yeah. Khushbu, our partner from what? From our outing. We hadn't met her until then, ना? इनसे पहली बार मिले outing वाले दिन. Hello, ma'am.
Yes. आज जब फर्स्ट कोट बुक से पढ़ा गया, उसी समय फर्स्ट मेरे दिमाग में जो आए वो आप दोनों ही थे, बिकॉज उसी समय टाइप कर दिया। जब ये सेशन मैंने जब पहली बार ज्वाइन किया था, दैट वाज द टाइम मुझे बहुत जरूरत थी इसकी, बिकॉज आई वाज गोइंग वेरी लो। और मतलब ये सेशन लाइफ में आके लाइफ चेंज हो गया एकदम। All of us, all of अब us. मतलब मजा आने लगा, लाइफ में मजा आने लगा है ना। आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you, That same life has become a rosy bed ना, ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत बेटर एंड बहुत रोजी हो गई है। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों में मजा आएगा, पहले पता ही नहीं था क्या होता है, ऐसा हो भी सकता है क्या। And you all are so lucky you have small children. हम लोग तो सीखे बच्चे बड़े हो गए, जिसके बच्चे 7 साल से कम है, 10 साल से कम है, यू कैन नाउ 7 years तक है ना, माइंड बहुत सॉफ्ट मट्टी रहती है, कुछ भी उनको सिखाते हैं वो अंदर जम जाता है, उसके बाद वो पत्थर बन जाते हैं ना, स्लोली स्लोली द मट्टी हार्डन हो जाती है, मूर्ति हार्डन हो जाती, फिर उसको कुछ भी रीराइट करने में बहुत टाइम लगता है। So at this age you can teach them gratitude. At this age आपको मैजिक मिल गया, you can teach them magic. It's really beautiful. मतलब खुद प्रैक्टिस करो तो फिर वो लोग खुद ही सीख रहे हैं, कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है कि gratitude करो, ऐसा बोलना नहीं पड़ रहा है। यंग पेरेंट्स सीख लेना तो ये बुक सेशंस सिखाने की बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको अपने आप ही इम्बाइब हो जाएगा। वो तो बड़े होके ये किताब पढ़ेंगे, क्या पढ़ते थे आप लोग? हम लोग तो याद यस टुडे मॉर्निंग मैं अपने बेटे को ड्रॉप करने जा रही थी और एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी, somehow आज हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे थे और वो एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही, और मैंने अपने बेटे के सामने कहा कि हे भगवान जी प्लीज एक्टिवा स्टार्ट कर दो, और वो एक्टिवा स्टार्ट हो गई। सो बच्चे पे इंप्रेशन गया कि whenever you are in trouble you just help from God और पैनिक क्रिएट मत करो। तो आई फील लाइक कि हाँ ये इस सेशन की वजह से मैंने रिएक्ट किया, और मेरी इस एटीट्यूड को जब बच्चा देखेगा तो ग्रेजुअली उसको ये चीजें समझ आएंगी, लेक्चर देने की जरूरत नहीं होगी उसको। थैंक यू ऑल। आरती जी जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं अभी। नो नॉर्मली हमारी बातें बच्चों को लेक्चर लगती है ना। हाँ वो तो होती है। दिस वे आई एम सेइंग ऑन अ लाइटर नोट, जस्ट एक नो आप लोगों को तो एक एक वर्ड भगवान का दिया हुआ है, वो लेक्चर नहीं हो सकता। वी आर ट्राइंग स्कूल्स में बहुत प्रैक्टिशनर्स है, पूना में वगैरह, दे आर डूइंग इन स्कूल्स, हम लोग की भी बातें चल रही है टू बी इन स्कूल्स। थैंक यू फॉर द सजेशन। इफ एनीबॉडी ऑफ यू, कोई थे ना, राधिका जी वाज अ टीचर, प्लीज कैरी इट टू योर स्कूल्स। अरे 5 मिनट ही रोज बात कर लो ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, just take gratitude to the children. Yes, Nita Bhabhi. Sarita Bhabhi, when we had gone to the park, we met this 3 standard के बच्चे मिले थे, कोई 10-15 बच्चे थे, हार्डली कितना हमने 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड किया होगा उनके साथ। 5 minutes। हाँ 5 minutes स्पेंड किया होगा, and that they were उसमें पूरा टाइम we were saying thank you and they were repeating after us thank you and they were feeling so good, and हमारी एनर्जीज इतनी पेप अप हो गई थी उनके साथ। It was amazing. Yes, Bhabhi. मैं तो आज आप लोग को थैंक यू बोलना मांग रही हूँ कि आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डन इट, तो सरिता दीदी यू हैड ओनली गॉट मी टू दिस सेशन, तो मैं तो हमेशा से आपके मतलब फॉर दिस डीड ऑफ योर्स आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। नहीं तो मैं कभी हमेशा नेगेटिव, बहुत जल्दी नेगेटिव में चल जाती थी, अब अभी भी जाती हूँ, ये बात नहीं है, कितनी बार कर लिया है अभी भी जाती हूँ, लेकिन आई रियलाइज कि हाँ मैं नेगेटिव में जा रही हूँ एंड आई ब्रिंग माई सेल्फ बैक। तो दिस मतलब दिस डीड ऑफ ग्रेट डीड, एंड मतलब मेरा तो सब मजाक उड़ाते हैं, हाँ तुम वापस चालू हो गया, इफ यू आर वांटिंग टू हियर ऑल दिस तो कम से कम गेट तो बंद कर लिया करो, वी डोंट वांट टू हियर ऑल दिस।
तो मैं बोलती हूँ ठीक है, किसी को नहीं सुनना है, मुझको तो सुनना है, मुझको तो भाई पॉजिटिव रहना है इसलिए। तो थैंक यू दीदी सो मच, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू श्वेता जी जो शुरू में थे, आप लोग 3 जन थे, इट वाज सो अमेजिंग। एंड एक और पर्सन जिसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ, वो सरिता दीदी रियलाइजेस दैट हमारी ताई जी जो थी वो इतना सबको देती थी, इतना सबका करती थी, तो वो मुझको इतना गाइड करी है आफ्टर माय मैरिज, क्योंकि शादी के पहले तो आई वाज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो कुछ करना नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो बहुत गाइड करे हैं। तो मैं हमेशा रोज उनको थैंक यू बोलती हूँ, एंड रोज पूजा घर में उनका फोटो है तो वहां उनको थैंक्स देती हूँ कि ताई जी आपके कारण मेरा सारा काम इतना सही ढंग से चल रहा है। एंड मतलब इट्स अमेजिंग कि कैसे ये रियलाइज कराता है ये बुक की कहाँ कहाँ हम नीचे जाते हैं, कहाँ ऊपर वापस उठ के आ जाना है। बहुत ज्यादा थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, Nita Bhavi, for sharing. रिचा जी का एक क्वेश्चन आया था, शी वाज टॉकिंग अबाउट द मैजिक रॉक प्रैक्टिस की वो सो जाती है, शी कैन नॉट स्कैन द होल डे एंड बेस्ट थिंग बोलने से पहले सो जाती है। तो आई वाज जस्ट आई थिंक यू विल बिफोर गोइंग टू बेड आप बिस्तर में लेटने से पहले अपना दिन स्कैन कर लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन द डे एंड देन से थैंक यू। बस बिस्तर में सोती अगर सपोज आपको नींद आ जाती है तो आपको पता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपेंड इन द डे। Clear, Richa ji? Any other question on it? No, ma'am. Thank you. ठीक है ना, वो एक चीज आप पहले ही याद कर लो, या तो बस सोना है ग्रेटिट्यूड फील करते हुए। सारा एक्सरसाइज का मसला यही है कि व्हेन यू आर स्लीपिंग नॉट के पत्थर हाथ में लिया एंड नींद आ गई, कम से कम दिमाग में दैट डीप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड शुड बी देयर। एक्चुअली मैम मुझे क्या है ना, पहले दोनों बच्चों को नैप देना होता है, फिर उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ ना कि होल्ड स्कैन करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, वो आप जस्ट पिक अप वन थिंग ना, पिक अप। आज बच्चा इतना आराम से सो गया, उस समय वो तो दिखेगा ना कि हाँ वो सो गया। यू कैन बी ग्रेटफुल कि वो सो ही गया कि वो शांति से सो रहा है। जस्ट द होल आइडिया इज टू ब्रिंग ग्रेटिट्यूड। मैम एक्चुअली क्या है, जो बैसिंग होती है वो तो याद रहती है, लेकिन क्या है ना कि वो होल डे स्कैन करने की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो उसको मैं ग्रेटिट्यूड करना भूल जाती हूँ और रॉक हाथ में रहता है, मैं सो जाती हूँ। आप स्कैन पहले कर लो। स्कैन का भी एक रीजन है, लाइक ये है ना, शालिनी ने आज ही कहा कि रीजन उसमें से अडॉप्ट करनी है एवरीथिंग। क्यों स्कैन करने बोल रही है? ताकि हम रियलाइज करें कि दिन में कितनी अच्छी चीजें होती है। बिकॉज हमारी मेंटालिटी है टू फोकस कि आज ये गड़बड़ हो गया, आज ये गड़बड़ हो गया। सो वो तो मॉर्निंग ब्लेसिंग के अलावा मतलब वर्बली मेरी प्रैक्टिसेस चलती रहती हूँ, तो 4-5 बार ग्रेटिट्यूड हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। थैंक यू मैम। Yes. So tomorrow we want everyone with your dream list. सामने लेके बैठना है अपनी dream list. So have we realized our sharing one more question, has been longer than our book reading as such today. It has been longer than our thing. Yes, yes. Amazing sharing today. Amazing. Yes, Richa ji, बोलिए. What's your question? मैम ड्रीम लिस्ट मेरी प्रीवियस मंथ की है, मैं अभी मतलब मेरा उसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ है, मैं वही ले सकती हूँ? वो फुलफिल होने जा रहा है, नेवर से फुलफिल नहीं हुआ है। ओके मैम एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत पुरानी प्रैक्टिशनर हूँ, तो जो मेरे सबसे पहले ड्रीम्स थे वहां से शुरू हो रहे हैं। ओके, तो आप पुरानी प्रैक्टिशनर है तो मैं फिर आपको रोकूंगी। if you are a पुराना practitioner, you cannot say my dreams are not getting fulfilled. एक्चुअली मैम जो प्रीवियस मंथ की थी, मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई थी, उसमें 3 to 5 ड्रीम्स ही मैंने लिए थे। जो पुराना था मेरा वो मैंने सब, लेकिन मैम जो सबसे पुराने ड्रीम्स मैंने राइट कर रखे हैं नोटबुक में, वहां से शुरू हो रहे हैं मेरे ड्रीम्स फुलफिल होना। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। Maybe practice na, time is never in your control until you are doing everything according to what Rhonda is saying. Because हम लोग बैठ रहे हैं सेशन में, that is a commitment कि मैं assignments करूंगी। मैं assignments नहीं कर रही हूँ, तो I am not even fulfilling the commitment to
माई सेल्फ। मैंने खुद से कमिटमेंट की है, तब मैं ये सेशन अटेंड कर रही हूँ कि हाँ कर लूंगी। दिस बुक इज आस्किंग यू। अगर वही अपने नहीं कर रहे हैं फिर अपने बोले कि ड्रीम्स नहीं हो रहे। आई एम टॉकिंग मैम टू टोटल एवरीबॉडी, मिला नॉट के दिन में पर्सनली मेरा टू यू। 3 to 4 मतलब एक्सरसाइजेस तो मतलब कंफर्म है। 3 तो मुझे करना ही करना है। बट पहले ये था कि मतलब 4 आराम से हो जाते थे बीच में, अब अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। पहले मैं 4-5 तो मतलब लेती ही थी एक्सरसाइजेस, मतलब होल डे इन अ डे मैं करती थी 4 एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग और इवनिंग मतलब मिला के। लेकिन अभी तो ये कि आप लोग करवाते तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरा पैटर्न चल रहा है। हाँ वही चलाइए, जस्ट फॉलो द बुक, 1 at दो सुबह रात वाला एंड 1 every day जो बता रहे हैं। इवन इफ यू फॉलो दैट इज वेरी गुड। एंड जस्ट लुक फॉर योर फीलिंग्स। आई थिंक थ्रू आउट द डे ना, आप किस फीलिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रहते हो, ये चीज आप जरूर ध्यान देना। इन अ डे इफ वी आर 51% टाइम्स पॉजिटिव, तो हमारा झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ है, सो वी आर गुड। लेकिन अगर हमारा झुकाव नेगेटिविटी की तरफ है दिन में ज्यादातर, तो हम कितने भी एक्सरसाइज कर ले, हम अपने गड्ढे खोदते जा रहे हैं, वो सारा ग्रैटिट्यूड उनको फिल करने में चला जाएगा। ओके। पारुल जी, एनी क्वेश्चन? पारुल जी, यू आर एबल टू अनम्यूट? हाँ बोलिए। मैम मेरी ना, मैं जो ग्रेटिट्यूड लिख रही थी मॉर्निंग में और जो एक्सरसाइज कर रही थी वो कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ आईज ब्रेक डाउन और हैंड से मतलब लिख नहीं पा रही सही से, तो मेरा सब रुक गया है 3 दिन से। फीलिंग्स तो रुक ही नहीं सकते हैं। नहीं तो लिख नहीं तो पा आप रही लिख नहीं बिल्कुल पा भी। रहे हो, आंख नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान इज नॉट कोई डंडा लेके तो बैठे नहीं है कि आपको वैसे ही करना है। अभी आप फीलिंग्स के साथ करो, मन में सोच के करो। ओके हाँ, बट डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। बहाने और बहुत जैसे बना देंगे, जो भी हालत है अपनी। इनफैक्ट ब्रेकडाउन है तो आप आंख से और कुछ नहीं कर रहे हो, तब तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है बहुत। आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड, आंखों के लिए जितना फोकस्ड ग्रेटिट्यूड कर पाओ, पास्ट में क्या क्या किया आपने आंखों के लिए, उसके लिए सारा ग्रेटिट्यूड। एंड नो कंप्लेनिंग, ये सब आते हैं, साइकिल्स है, आया है ठीक हो जाएगा। माय आईज आर गेटिंग बेटर एवरी डे। मैं, आप लोगों ने बोलता है किसी से शिकायत मत करो, लेकिन घर पे जैसे मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ तो घर पे तो बताना पड़ेगा। तो उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था तो मैंने को सबको बताना पड़ा, तो फिर घर वालों ने और लोगों को बताया था। तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे इन लोगों को क्यों बता दिया, इनने सबको बता दिया। अब तो ये सब जगह जो नहीं होना था वो हो गया, मेरा सारा का सारा मैंने इतने दिन मेहनत की वो सब बेकार हो गई। नो 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 नो। आप एनर्जी आप डाल रहे हो उसमें, आप डाल रहे हो वो एनर्जी। आप देख रहे हो, कोई बात नहीं, आपको यही बोलना है कि जो जहां जरूरी था मैंने बताया, फिनिश्ड। अब वो आगे जहां जा रहे हैं, बट आप अपनी एनर्जी डाउन मत करो ये सोच के कि मैंने गलती कर दी या फिर लोग तो बता रहे हैं मेरा तो डाउन हो रहा है। नो, यू आर गिविंग दैट एनर्जी। आप सिर्फ यही बोलते रहो, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गेटिंग, माई आईज आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपकी आवाज भी अभी आपकी फीलिंग्स को बता रही है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, ये हमें फील हो रहा है। सो प्लीज पेप अप योर एनर्जी। आप कोई भी एक ऐसी चीज आप अपने लिए, अपना मूड शिफ्ट करने के लिए आप देखिए आपको क्या चीज में खुशी मिलेगी। आपने जिसको इम्पोर्टेंट था उसको बताया, उसके बाद वो जहां फैल रही है, डोंट इवन टेक दैट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। और आपका कुछ खराब नहीं होने वाला है इससे। इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ। आप नहीं बता रहे हो ना। मैंने नहीं, जिनको बताया उनको तो बताया, लेकिन उन लोगों ने और बता दिया। हाँ तो ठीक है, आप यू आर नॉट कंसर्न देयर। ठीक है, ओके, तो मतलब जस्ट वर्बली एक्सरसाइज करें हम, बाकी रिटन वाला नहीं करूं, वर्बली कर सकती हैं। हाँ हाँ, वर्बली मेंटली सब कीजिए। ओके आपको तो और टाइम है, एक्स्ट्रा डालिए उसमें। आपको एंड अभी जरूरत भी है, जितना ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं सारा ग्रेटिट्यूड घूम के आपकी आंखों पे आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, फिर मैं ये भी सोच रही थी मैं इतने दिन से कर रही हूँ तो मेरा बेटर होने की वजह उल्टा हो गया। नहीं, ये पुराने गड्ढे होते हैं। अभी जो का रिजल्ट आपको मिलेगा, ये पुराने गड्ढे होते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं उसका तुरंत कैसे रिजल्ट मिलेगा ना, इट टेक्स टाइम। ओके, थैंक यू मैम।
Let's all go. We are done. Any more sharing? I think So everyone has let's got a all lot of celebrate. ideas. Huh? Everyone has got a lot of ideas. Who 3 people to thank now? Yes. Let's clap for everybody sharing. Let's clap for ourselves. Say thank you, thank you, thank you. Let's clap for a minute. Let's celebrate life. Let's clap for our dreams coming to us. वो हमारी तरफ आ रहे हैं. Thank you, thank you, thank you. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for a complete and whole body. Thank you, thank you, thank you. Thank you for making me so healthy. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the abundance of money that we enjoy. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the abundance of relationship we have in our lives. Thank you, thank you, thank you. सबके dreams fulfill हो रहे हैं. Thank you, thank you, thank you. Thank you, universe. Thank you, God, for blessing each and every person with what their heart desires. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 God, thank you, 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 thank you. I am a powerful soul. I am healing. I am blessed with the divine energies. God is with me. I am a child of God. I am healing. Each and every part of my body is healthy. I am getting better and better every day in every way. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Have a blessed day. See you all tomorrow. Bye-bye. Bye. Final reminder, your dream list tomorrow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.